chapter number 3, gravitation, and the name of this article is variation in the value of g. As you know that in live classes we already discussed this article, and some students have some confusions in live classes. Then also prepare the video for those students the variation in the value of g. Then firstly we discuss the value of g. As you know that the g is known as the acceleration due to gravity, and in last lecture we have discussed about the definition, what is acceleration due to gravity and how we can calculate the value of g. But today we discuss the next topic, variation in the value of g. Then the value of g is changed. The value of g is changed on the basis of the first one, that on the basis of the shape of the earth. अगर अर्थ की शेप चेंज है, मीन्स एज यू नो दैट द अर्थ इज ए elliptical shape, then the value of g is changed. Secondly, we have discussed that the value of g is also changed on the basis of the height. If any object is moved from the surface of earth to a height, then the value of g is changed. And last one we discussed that the value of g is changed as the object is go inside the depth of the earth. Then firstly we discuss the value of g on the basis of the shape of the earth. Then we can write here on the basis of shape of earth. This is the first part of the variation of the g. Then how we can say the value of g is changed on the basis of the shape of the earth. For that we prepare a diagram. As you know that earth is a elliptical shape, then we make a diagram, and in this diagram the earth consists of the two parts. One is the pole, second one is the equator. From this origin to this distance will be equal to rp, that is the radius of the pole, and same here re. As you can see diagram, the value of re is greater than rp. जो इक्वेटर की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है रेडियस की एज कम्पेयर टू द पोल. देन हाउ वी कैन से द वैल्यू ऑफ जी. द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल इज लेस एज कम्पेयर टू द इक्वेटर. तो जो वैल्यू ऑफ जी है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो आर टी कम है तो वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी एट पोल. पोल पे वैल्यू जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द इक्वेटर. क्यों? द एग्जामिनर also ask this question from you. The value of g is more at pole as compared to the equator. Then how we can give the answer? Then for that we can use the relation, and you already know that this relation small g equal to capital G capital M upon r square. This is the equation number 1, and from these equations we can also understand why the value of g is more at pole as compared to the equator. ऐसा क्यों होता है वो हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं. कैसे? देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. जो r है और g है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इनवर्सली का मतलब है ये उल्टे हैं. अगर r की वैल्यू इंक्रीज होती है तो g की वैल्यू कम होगी. अगर यहाँ पर g की वैल्यू r की वैल्यू ज़्यादा होगी, देन द वैल्यू ऑफ g इज स्मॉल बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. अब यही सेम कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. देन वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर पी कॉस स्क्वायर. इसको डाल दिया हमारी इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, इफ द वैल्यू ऑफ आर पी इज मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज लेस. बट एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, इस डायग्राम से आपको एक बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है. जो वैल्यू ऑफ आर पी है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस के ज़्यादा है. आपने सर्कल निकलना जस्ट आई सो जस्ट फॉर द इंडिकेशंस, देन आई दैट्स व्हाई आई गो फॉर दिस सर्कल. बट ये आपने नहीं करना है सर्कल. देन आर पी
अब इस केस में जब क्वेश्चन नंबर 2 में आरपी की वैल्यू कम है ज़्यादा है, तो आप यहाँ से बोलोगे आरपी की वैल्यू क्या कम है। तो आरपी की वैल्यू कम होने से जीपी की वैल्यू क्या होगी है ज़्यादा होगी। देन यू कैन से द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज मोर बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रेडियस एट पोल इज लेस। सेम हेयर वी कैन यूज द अनदर इक्वेशंस फॉर इक्वेटर जी ई इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 डाल दी मैंने। अब इक्वेशन नंबर 3 में क्या आर ई की वैल्यू ज़्यादा है, आर ई ज़्यादा है, देन वैल्यू ऑफ आर ई इज मोर देन द वैल्यू ऑफ जी ई इज लेस। देन यू कैन से इफ, आप यहाँ पर लिखेंगे इफ आर ई ग्रेटर देन आर पी देयरफॉर जी ई ग्रेटर देन जी ई। इसका आंसर आ गया। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है, देन यू कैन गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन के बेस पे आप उसका आंसर दे सकते हो। सेकंड पार्ट भी हमने डिस्कस किया था, थर्ड पार्ट बहुत ईजी है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिस्कशन ऑफ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, सेम ये कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, बट द सेकंड पार्ट इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ वी कैन आल्सो explain the depth and height. Secondly, we discuss the on the basis of the height. Then we can also write here variation of the value of g with height. We can write here with height. मैंने कंप्लीट लिखा, आपके पास यहाँ पर आएगा पार्ट नंबर 2 the variation of the value of g with height or altitude is also. Then for that we consider earth is a sphere. हमने इसमें डायग्राम बनाया, then you draw a diagram. Earth is a sphere. Then from this is the center. From center to this distance is r. Or we also place an object on the surface of the earth, and this object is B. As you can see from this diagram, this point is A. From A to B, this will be equal to h. ये हाइट h है ऑब्जेक्ट की, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है r. From origin O to B, this will be equal to a height r plus h. ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है। From the origin, the height will be equal to r plus h. Then we can calculate the value of g at the surface of height of this object B. हम height पे कैलकुलेट करेंगे और आप अर्थ की सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे। Then firstly we can write here, आप यहाँ पर लिखोगे as we know that small g equal to capital G capital M upon r square। ये रिलेशन आपने डेरिवेशन किया था, हमें ये आपको याद भी है। ये हमने रिलेशन यूज करना है। और यू कैन आल्सो पुट द इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए ऑन द सरफेस इनसाइड द अर्थ। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो यहाँ से आगे का डिस्टेंस कितना है r, तो मास कितना है इसका m, और एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना है g। तो आपके पास आ गया g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अगर ऑब्जेक्ट हाइट b पे चला जाए तब उस केस में हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल g एट हाइट h इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये कैसे है, ये इक्वेशन नंबर 2 ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ the object is placed at point B, then the height will be equal to h. As you can see from this diagram, height कितनी होगी है, h होगी है ऑब्जेक्ट की यहाँ से, तो टोटल हाइट कितनी होगी है r plus h. Then we consider the equation number 2. अब आप इसके बाद आपने लिखना है डिवाइडिंग। आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1. देन वी गेट, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी एच अपॉन जी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस h
h का स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और वी कैन आल्सो राइट हियर आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और वी कैन आल्सो राइट हियर आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जी एच अपॉन जी। उसके बाद इसके बाद इफ़ यू अप्लाई सम कंडीशंस आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, देन आप यहाँ पर एक लाइन ऐड करोगे। इसके बाद सिंस यू कैन राइट हियर सिंस आर प्लस एच, सिंस आर प्लस एच ग्रेटर देन आर, since r plus h greater than r, then what will be happen? Then we can write here this equation saying gh upon g less than equal to 1, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, then we can write here gh क्रॉस मल्टीप्लाई करना है gh less than g means at height h the value of g is small। आपको पहले से पता है जो वैल्यू ऑफ जी है वो 9.8 है। अब हाइट पे जब जाएगी तो एज यू कैन सी जी एच लेस देन जी, तो वहाँ से वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा ही सेम केस हम डेप्थ पे कैलकुलेट करते हैं। डेप्थ में आपके पास हाइट चेंज हो जाती है, सेम आंसर यहाँ पर आएगा, वहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस डी अपॉन आर एच। तो उस केस में भी, डेप्थ के केस में भी और हाइट के केस में भी, दोनों केस में वैल्यू की जो जी होती है वो कम होती है। एट द सरफेस ऑफ द हाइट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू की वैल्यू कम होती जाएगी। वो आपको दिखेगा, मैंने डायग्राम कंसीडर किया, इसका रेडियस कितना था आर, अर्थ का मास कितना एम, हाइट में एक ऑब्जेक्ट रखा है बी, तो टोटल हाइट कितनी होगी आर प्लस एच। तो मैंने इक्वेशन कंसीडर की, ये मैंने अर्थ के लिए कैलकुलेट किए, जब आपने ऑब्जेक्ट हाइट एच कर दिया तब आपने कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो कंक्लूजन ये आता है जी एच लेस देन जी। अगर ये एच से छोटा है इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू ऑफ जी एच है हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच इज लेस देन द वैल्यू ऑफ जी, तो उस वैल्यू से कम होएगी। देन वी हैव डिस्कस द 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस दैट ऑन द रेशियो ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, हमने डिस्कस किया। सेकंड हमने हाइट, और थर्ड भी ऑलमोस्ट सेम है, बस वहाँ पर आप करिएगा वी गो इनसाइड द डेप्थ ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, अर्थ की डेप्थ के नीचे जाएंगे, द वैल्यू ऑफ जी इज आल्सो लेस देन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, क्योंकि वहाँ पर सबसे वैल्यू कम होती है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन योर आंसर विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया। आफ्टर दैट द सम होमवर्क आई ऑलरेडी गिव यू, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वो आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या होता है ये हम कर चुके हैं। उसके बाद वी हैव डिस्कस द वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, वो हम आज भी डिस्कस करेंगे, जो हमने लाइव। Yes, this is the next numerical problem on the basis of the gravitations, and we already discussed this numerical on the live classes also. If the mass of the moon is 1/100 the mass of the earth and radius of the moon is 1/4 the radius of the earth, then we find the ratio of the acceleration due to gravity on earth to the acceleration due to gravity on the moon। आपने ये दोनों रेशियो कैलकुलेट कर दिया। Then how we can find the solution of this type of numerical? Then firstly you write the same term. Firstly, as you know that you can also write the solutions of this numerical problem. You can also write here, as we know that G equal to capital G capital M upon R square।
इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। नाउ वी आर गोइंग to calculate the acceleration due to gravity on the earth. Then what will be the answer of this question? Then we can write here acceleration due to gravity on the earth, G equal to capital G capital M upon R e का square. This is the question number 2. For moon, the value of acceleration due to gravity Gm equal to capital G capital M upon R m का square. This is the question number 3. ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 आ गई है. And now the some situations is given, and the situation is that according to the questions, the mass of the moon is equal to 1/100 the mass of the earth. This is the given. Mass of the moon is 1/100 the mass of the earth. Second, radius of the moon is 1/4 the radius of the earth. This is also given. This red terms is indicate that this is given in our question. As you know that in our questions, if the mass of the moon is 1/100, आपके क्वेश्चन में given है, if the mass of the moon is 1/100 of the radius is 1/4 the radius of the earth, then you can write here mm equal to 1/100 me and rm equal to 1/4 re. This is also given. Now we are going to discuss the next part. Then we can write here capital Gm mass of acceleration due to gravity on the moon equal to capital G mm. What is the value of mm? You can put here 1/100 into m. ये मैंने mm की जगह पुट कर लिया. सेम हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ rm? यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ rm हेयर. आपके पास आ जाएगा re का स्क्वायर 4 का स्क्वायर. This is the square 4 square. Then we can write here, we can also write here 16 upon 100 capital G capital ME upon RE का square. हमारे पास ये क्रम आ गई. As you can see on the blackboard, the value of mm, we can put the value of mm. This is the mass of the moon. Mass of the moon is 1/100 me. We can put the value of this in equation number 3. And same here we can put the value of rm. Rm is the radius of the moon. This will be equal to 1/4 of radius of the earth. Then you can put the value of me by 1/100 me into 1/4 of re. तो आपके पास आ गया 4 ऊपर चला गया, re नीचे आ गया. Then we can write here 16 upon 100 G me upon re. और this is the equation number 2. Then same term we can write here 16 upon 100 into G e. We can write here the value of G. Then we can write here same term we can write here Gm equal to 16 upon 100 into Ge, or we can also write here Ge upon Gm equal to 100 upon 16 equal to 25 upon 4. यहाँ तक आपने कैलकुलेट करा था. And this will be equal to 20/4. ये सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. यू कैन आल्सो ट्राई द अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. थैंक यू.